Hello students, welcome back. Today we will learn the accounting treatment of goodwill. If you have not yet subscribed my channel, please subscribe it and stay tuned. Watch the video till the end. Hello everyone. In the last video, we had taken up the chapter Change in Profit Sharing Ratio among the existing partners. And in that particular video, I had shown you how to calculate sacrificing ratio and gaining ratio. That was the first adjustment that we are supposed to make in case of reconstitution of partnership firm. And now the topic that is on the screen, you can see accounting treatment of goodwill. This particular topic, accounting treatment of goodwill. We had already learned the valuation of goodwill and now the accounting treatment. Students, I would like to tell you something, that this particular topic is very, very important from examination point of view. Whatever questions you solve, whether it is valuation of goodwill, the main topic, or you are doing the topic changing profit sharing ratio among existing partners, or admission of partner, retirement and death of a partner, this particular topic will be there in each and every part. So very carefully try to understand the topic as it is being explained to you right now. To start with the accounting treatment, first of all, you should know under what standard does this treatment falls. Accounting treatment for goodwill comes under Accounting Standard 26, AS 26, intangible asset. And I have told you that goodwill is an intangible asset. Why intangible? Because it has no physical appearance, it has no physical existence. You just can feel it, you can just see that some amount of good things are happening within the organization. The organization has good name, good fame, good reputation, and that is goodwill. And now when we are proceeding with this topic, accounting treatment of goodwill, the previous topic is to some extent attached with this. प्रीवियस जो टॉपिक था हमारा वो ये था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब निकाल रहे हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो उस वक्त हम निकालते हैं जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म अगर हो रहा है तो हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालते हैं. अब एक बात देखिए, जब इंक्रीज मतलब गेन हो रहा है इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर, जब कोई पार्टनर गेन कर रहा है, इसका मतलब होता है कि वो दूसरे पार्टनर से प्रॉफिट का शेयर खरीद लिया है. अब जब हम कुछ खरीदते हैं तो हमको कुछ पेमेंट करना पड़ता है, तो जिसने गेन किया है उस पार्टनर को, जो पार्टनर सैक्रिफाइस किया है, उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा. किस हद तक? जितना का शेयर उसने खरीदा या गेन किया. मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ कि जब हम, सिंपल सा बात, जब आप दुकान में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं तो आपको कुछ पे करना पड़ता है. यू पे सम. जैसे कि ये पेन जब हम खरीदे हैं तो इसके लिए 20 रुपया 40 रुपया जो भी इसका दाम है उसको हमको पे करना पड़ा. Because I am gaining this pen and in return I have to compensate the amount or the value of this pen. ठीक इसी तरह से जब कोई पार्टनर प्रॉफिट का शेयर गेन करता है तो जिससे वो गेन किया है, मतलब जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा
किस हद तक, जितना ना उसने गेन किया। अब देखिए ये जो अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन जो कि पेमेंट करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, वो किस तरह से कैलकुलेट होगा। जो गुडविल का वैल्यू, फर्म का जो टोटल गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे, उसका वो टोटल वैल्यू इनटू जितना हम शेयर गेन कर रहे हैं, मतलब जो गेनिंग पार्टनर है वो जितना शेयर गेन कर रहा है इनटू दैट। ये जो अमाउंट कंपेंसेशन का निकल रहा है इसको गुडविल प्रीमियम भी कहा जाता है। अब आते हैं कि व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के माध्यम से जब हम गुडविल को एडजस्ट करवाएंगे तो क्या करेंगे। अब आप सभी लोग जानते हैं कि कैपिटल अकाउंट जो है वो दो तरह से होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल होता है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है। तो अगर हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो उस वक्त का जो जर्नल एंट्री पास होगा वो है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एडजस्टमेंट क्यों हो रहा है? फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अब देखिए कि अगर फिक्स्ड कैपिटल हुआ तो दो अकाउंट बनता है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो उस वक्त हम जो गुडविल का एडजस्टमेंट पास करेंगे तो वो करेंट अकाउंट के माध्यम से, बिकॉज करेंट ईयर का जो भी चीज़ हो रहा है वो करेंट अकाउंट में पोस्ट किया जाता है। आप सभी लोग इस बात को चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। तो इफ या फिर इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल your journal entry will be gaining partners current account debit to sacrificing partners current account, और narration adjustment for goodwill due to change in profit sharing ratio। अब आते हैं कि अगर हम गुडविल को रेज किए हैं और उसके बाद राइट ऑफ किए हैं, तो यहाँ पर भी दो केस है आपका, केस 1 और केस 2। केस 1 जो है, अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है मेरा तो क्या हो जाएगा, तो गुडविल रेज करने के लिए और उस गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए जो जर्नल एंट्री है वो है गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और उसके बाद उसको राइट ऑफ जब करते हैं, मतलब पहले क्रेडिट करना और उसके बाद डेबिट कर देना, मतलब पूरी तरह से कैंसल आउट हो जाना। तो पहले डेबिट क्रेडिट जब किए हैं तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किए हैं, और सेकेंड एंट्री में जब उसको डेबिट कर रहे हैं, मतलब राइट ऑफ कर रहे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये दो एंट्री पास करना होता है। अब देखिए इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, हमने जर्नल लिखा नहीं है यहाँ पर क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि जर्नल तो यही दो होना है, केवल जब हम यहाँ लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस कैपिटल अकाउंट को नहीं लिखकर हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल जो है वो मेरा क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है कि हम करेंट अकाउंट के माध्यम से एंट्री को एडजस्ट करवाते हैं। तो सारा एंट्री जो है सेम होगा, केवल कैपिटल अकाउंट के बदले में हम क्या लिखेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब एक और पॉइंट आता है कि अगर आपके जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, या फिर अगर क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा है कि गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इसका मतलब होता है कि आपने गुडविल परचेज किया। इसको एग्जिस्टिंग गुडविल कहा जाता है, मतलब जो गुडविल आपने परचेज किया है वो आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाएगा, और यही आपका एग्जिस्टिंग गुडविल है। अब इस एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, तो आइए आप देखते हैं कि एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, मतलब उसका जर्नल हम कैसे पास करेंगे। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है
तो हम कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। ऑब्लिक देके हमने लिखा करेंट अकाउंट, तो करेंट अकाउंट कब लिखेंगे? जब फिक्स्ड कैपिटल है। इसको डेबिट करेंगे टू गुडविल अकाउंट, मतलब सभी पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट को डेबिट करना है टू गुडविल अकाउंट। और इसके लिए क्या जर्नल एंट्री लिखना है? नरेशन फॉर गुडविल रिटर्न ऑफ। देखिए एक पॉइंट आप बताते हैं, प्रश्न आपके मन में उठ रहा है कि क्यों इसको हम राइट ऑफ करेंगे। ये जो गुडविल है एक्चुअली ये है क्या? ये तो प्रॉफिट है ना, ड्यू टू द रेपुटेशन, ड्यू टू बीइंग फेमस इन द मार्केट। एक बिजनेस जब कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट, मतलब कुछ प्रॉफिट जो वो अर्न करता है, दैट इज गुडविल। अब ये जो प्रॉफिट है ये तो उसका पिछला पुराना एग्जिस्टिंग पहले से है, तो इसको पुराने पार्टनर्स को, मतलब जो भी पार्टनर्स थे उन पार्टनर्स को बांट देना है। इन व्हाट रेशियो? इन देयर ओल्ड रेशियो। ये जो राइट ऑफ होगा, ये राइट ऑफ किस रेशियो में होगा? इन ओल्ड रेशियो। यहाँ पर एक छोटा सा कहानी बताते हैं, ठीक है ना। हमारे घर में जनरली यही होता है कि जब कोई नया दुल्हन आता है तो उसको क्या दिया जाता है? नए जेवरात दिए जाते हैं। तो नए लोगों को के लिए नया चीज़, लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं, मतलब अगर माँ का कोई जेवरात है ना, पहले से ही उनके पास जो जेवरात है उसको हम क्या करते हैं? उसकी बेटियों को बांट देते हैं। लेकिन जो उसका नया जो डॉटर इन लॉ जो आया है, जो नया वधू जो घर में आता है, उसको नया चीज़ ही दिया जाता है। और पुराने मतलब जो बेटियां हैं हमारी, वो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं ना, तो उनको जो मेरा पुराना प्रॉफिट का हिस्सा है, मतलब जो पुराने जेवरात के जो हिस्सा था, वो उसमें बांट दिया जाता है। वो नया कन्या को, बहू को जो है नहीं दिया जाता है। ठीक उसी तरह से सभी गुडविल जो है, पुराना गुडविल जो है, वो सभी ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा और ओल्ड रेशियो में। So students, here is a question on your screen. So let us solve this question, which is related to the topic accounting treatment for goodwill. So students, let us solve this illustration that I have given you right now on your screen. You see, there were three partners X, Y and Z, and their old ratio given in the question is 3:2:1, and their new ratio is 2:3:5. Now whenever the question for treatment of goodwill is given, the first and foremost thing that you should do is to find out the sacrifice and gain of the partners. Means you have to find out or calculate the sacrificing ratio and the gaining ratio. Now here you see X, the partner X, his old ratio was 3 out of total is, sum total of the ratio is 6. So 3/6 minus the new ratio 2/10, and we get plus 9/30. Now since positive result is coming, means he is sacrificing. In the same way Y, उसका old ratio क्या था? 2/6, and now what Y is getting? 3/10. After calculating, I get plus 1/30. This fractional calculation, all of you know how to do it. So plus, again this plus sign means sacrifice, that is Y is
sacrificing. And lastly, let us come to Z. Z previously was getting 1 by 6 and now he is getting 5 share, means 5 by 10. After calculating, we get a negative result, which means that Z is gaining. Now what will be the amount of compensation that Z will pay to these two sacrificing partner? So the value of the goodwill that is given is 60,000. So goodwill, which is given in the question, is equal to rupees 60,000. Okay. So the compensation amount will be this 60,000 into the part that, or the share Z is gaining. जितना Z गेन कर रहा है उतना से गुना करेंगे, मतलब 60,000 इंटू 10/30 हम लोगों को कितना आ जाता है, वी गेट 20,000. अब इस 20,000 X और Y को मिलना है, लेकिन किस रेशियो में? अब देखिए इन दोनों के बीच का जो रेशियो है 9/30 1/30, विच मीन्स 9:1. हमने यहाँ लिख दिया है 9:1. अब इस रेशियो में इस 20,000 को हमने बांट दिया तो X को कंपेंसेशन का 18,000 मिलेगा, ही विल गेट 18,000 एंड Y विल गेट 2,000. एंड नाउ let us come to the journal entry part. What journal entry will be passed? Students, in this particular illustration, in this question, there are two questions included, two parts. First part says that when goodwill is adjusted through the capital account of the partner, if goodwill is adjusted to the capital account of the partner, then you have shown you that only one entry will be passed, and that entry is gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account. So here gaining partner is Z and sacrificing partner is X and Y. तो journal entry क्या होगा? X capital account, Z's capital account debit 20,000 to X capital account to Y's capital account 18,000 and 2,000. And the narration will be for adjustment of goodwill among partners. And the second part of the question is when goodwill account is opened. So then two entries will be passed. Goodwill account is opened means when goodwill is raised. So there will be two journal entries. First journal entry will be goodwill account debit to all partners capital account. That will be the first entry. So goodwill account debit 60,000 to X capital account, to Y's capital account, to Z's capital account, and this 60,000 is divided in the old ratio among the partners. This 60,000 is divided among the partners in the old ratio. And the second entry is all partners capital account debit to goodwill account. So all partners are X capital account debit, Y's capital account debit, Z's capital account debit to goodwill account 60,000. Now these 60,000 will be divided in the new ratio. This is your new ratio. So one thing remember, you should remember one thing, that when goodwill account is open, means when the goodwill is raised, two journal entries will be passed. For the first journal entry, the amount of goodwill will be divided in old ratio, and for the second journal entry where it is written off, goodwill is written off, it will be distributed in the new ratio. Students, I have tried my best to explain this accounting treatment of goodwill. Please go through the chapter, the exercises,
and practice a lot so that you will not face any problem in the examination hall. Till then, thank you. Soon I'll be back with the next topic.